और हम लोग इसको इसीलिए सार्वजनिक कर रहे हैं जिससे कि इसकी गहराई से तहकीकात हो सके और जिन जिन लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, चाहे ये पुलिस ऑफिसर हों जाफर साहिब, चाहे ये शरद कुमार हों जिन्होंने ये बैकडेटेड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाए, चाहे ये करुणानिधि हों जो इस कवर अप में इन्वॉल्व दिखते हैं, चाहे ये टाटा हो जो कि तरह तरह के डील्स में इन करुणानिधि और डीएमके के साथ इन्वॉल्व दिखते हैं, इन सब की गहरी तहकीकात होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग एक कॉन्वर्सेशन जो कि शरद कुमार के साथ होता है, जो कि पूरा कॉन्वर्सेशन अंग्रेजी में है, उसको हम लोग चलाने की कोशिश करते हैं। Hello? Yes, sir. Sir. The phone is not reachable. Sir, I kept in the car. I come to the Relevant house. Okay, what thing is it? Sir, okay, we are sending. ये इसका ट्रांसक्रिप्ट आपके पास है, पेज 6 पर आप जाएं तो टॉप से शुरू हो रहा है। I am checking out. So they are saying that 50-50 only. They are not confirming. They are saying that Rajiv, they are telling about this Rajiv. One they are saying that by that way, first to be taxed will be the singing guys. That has not been done. Maybe they are doing it to apply some pressure so that they will not take the direction. We have conveyed the facts about our transaction and also the fact that he is not a director. He is only a shareholder. The other director is not there, and this is all the things that being the transaction of which he was there. When the transaction is paid, she was there. She was the director. Really? Yes, sir. That day you said no. She resigned in December. All that case is going on now. So I'm resigning. No, I resigned in December, but the whole thing coming. Money came in 2008 or something. Oh, this December only is that. That's December. Yes, sir. This December or she was there as a director. When I signed some 100 pages of backdated things in the issue, we are taking it out and reading it now. The problem is that the economy is very news and getting news and the query, then we are manipulating the point of that, so pages are being changed. बस ठीक है, ये काफ़ी है, इतना काफ़ी है। जस्ट सैंपल आपको सुना रहे थे। अब इसमें you see the main things which emerge from these tapes are, number one, that this whole story of a loan being given by this Shahid Balwa's company to this Calignar TV owned by the Karunanidhis, by this family, that this was a completely bogus, cooked up story, and in order to cook up this story, two things were done. Backdated documents were fabricated and money was taken from some new companies in order to show the return of this loan. These amount to serious offenses of fabrication, forgery, cover-up, etc. It also shows that Karunanidhi was fully in the know of things, because one conversation is between Karunanidhi's private secretary for 30 years, Shanmuganathan, and Jafar Syed, in which these transactions of this bogus, this money being taken from new companies in order to show the return of this loan is being discussed. And as I said, it also contains evidence of several dubious transactions between the Tatas and this DMK family, which seems to confirm several things which came out in the Radia tapes, which also mentioned the same transactions,
which also confirm, in fact, other documents which had come out earlier, which showed that this 25 lakh gift was given by Tata Teleservices to Kanimodi's NGO, that this letter written by Ratan Tata at the same time shows that there were several dubious transactions, including, of course, that Voltas land deal of more than 200 crores, where this land worth more than 200 crores owned by this Tata subsidiary Voltas was transferred. All this shows the deep involvement of the Tata Group in this 2G scam, not just the 2G scam, but several other scams, it appears, involving the DMK family and the Karunanidhis. All this requires detailed investigation. I'll request हिंदी में इसी को समराइज अच्छा बस हिंदी में समराइज कर देते हैं। देखिए, इन टेप्स में जो चीज़ निकल कर आ रही है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पूरी स्टोरी बनाई गई इस फैमिली को बचाने के लिए, जिनके पास ये 200 करोड़ से ज़्यादा शाहिद बलवा की कंपनी ने दिया था कि भाई ये लोन था और ये लोन वापस किया गया, ये स्टोरी बिल्कुल झूठी थी। ये स्टोरी बनाने के लिए बहुत सारे बैक डेटेड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाए गए और ये सब और नई कंपनियों से पैसा लिया गया, ये पैसा वापस दिखाने के लिए, उस शाहिद बलवा की कंपनी को वापस दिखाने के लिए। और इन सब चीज़ों के बारे में करुणानिधि को पता था, उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट था। इसके अलावा इन टेप्स में टाटा का भी एक बहुत गहन इन्वॉल्वमेंट सिर्फ 2G स्कैम में ही नहीं, बल्कि और भी कई डील्स जो हुई, जो डीएमके और टाटा के बीच में, लो फ्लोर बसेस का, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन भी ऑर्डर किया है नीरा राडिया टेप्स के थ्रू, कई सारी डूबियस ट्रांजैक्शंस। एक पावर प्लांट का भी जिक्र है इसमें, जिसमें वो कहते हैं कि काफ़ी किकबैक मिला इन लोगों को। तो इन सब चीज़ों की अब तहकीकात की ज़रूरत है, चाहे वो सीबीआई करे, चाहे कोई दूसरी स्वतंत्र संस्था करे, और इनको अपने अंजाम तक पहुंचाने की ज़रूरत है। कल युगांडा की 3 लड़कियों ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है और 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया है। और वो तीनों लड़कियां उसी खिड़की एक्सटेंशन के इलाके से आती हैं जहां के लोग इस बात की शिकायत कर रहे थे कि उस इलाके में ड्रग्स और सेक्स का रैकेट चलता है। युगांडा की इन 3 लड़कियों ने भी अपने बयान में इस बात की पुष्टि की है कि उनको जबरन वैश्यावृत्ति के धंधे में धकेला जा रहा है। उनके साथ उनके पासपोर्ट छीन लिए गए, या बहुत सारी बातें उन्होंने अपने बयान में दर्ज कराई हैं। इससे बिल्कुल साफ है कि आम आदमी पार्टी और खिड़की एक्सटेंशन के लोगों ने जो शिकायतें दिल्ली पुलिस कमिश्नर और दिल्ली के पुलिस अधिकारियों और एसएचओ के सामने कही थी, वो पूरी तरह से सच थी। आम आदमी पार्टी ने जो बात कही थी कि ड्रग्स और सेक्स का रैकेट उस इलाके में चल रहा है, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, वो बिल्कुल सही थी। उसको लेकर पुलिस पर कार्रवाई की मांग को लेकर उसमें 2-3 मुद्दे और जो शामिल किए गए थे। संघर्ष करना जायज़ था, और ये खुद वो लड़कियां कह रही हैं कि दिल्ली पुलिस भी इस पूरे गोरख धंधे में, इस पूरे काम में शामिल है। इसका मतलब कि अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि जिस दिन से खिड़की एक्सटेंशन का मामला उजागर हुआ है और उससे पहले जब वहां के लोग एप्लीकेशन दे रहे थे, तो उस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, इस रैकेट को चलाने वाले कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, यह युगांडा की लड़कियों को जो जबरन
इस धंधे में धकेला जा रहा है, उसमें उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई की है, और इसको लेकर कल आम आदमी पार्टी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा। और श्री अरुण जेटली जी को भी इस बात की स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ब्लॉग लिख के समर्थन किया था। उनकी पार्टी लगातार इस पर बोलती रही है। मोदी जी ने भी इस पे टिप्पणी की थी कि अफ्रीका के नागरिकों के साथ दिल्ली में ज्यादती हो रही है। आज खुद इस बयान से ये साबित हो रहा है, उन लड़कियों के बयान से, कि आम आदमी पार्टी ने जो मुद्दा उठाया वो एक गंभीर मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। दिल्ली में ड्रग्स और सेक्स के रैकेट का अगर तहकीकात और जांच कायदे से होगी, निष्पक्षता से होगी, तो इसमें बहुत बड़े बड़े लोग फंसेंगे। इस कारण से दिल्ली पुलिस कमिश्नर और दिल्ली की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। दिल्ली के राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग से भी हम लोग देखेंगे कि उनसे भी हमारा अनुरोध रहेगा कि उनका इस प्रकरण में उनकी क्या भूमिका और क्या कार्रवाई रहती है। कल इस पूरे मसले को लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पे अपना प्रदर्शन करेगी 11 बजे से कल। Yes, we will also file these tapes in the Supreme Court. This is a matter which the whole country needs to know, and that is why this expose is required. But it will also be filed in the Supreme Court, because this certainly has a very important bearing on the whole 2G case and the investigations. प्रशांत सर, आपने अपने तरफ से टेप की कोई जांच कराई है क्या? वाकई टेप फैब्रिकेटेड तो नहीं है? आप लोगों ने अपनी देखिए, हम लोगों ने इतनी जांच करा ली है कि जो लोग इन लोगों की आवाज़ से फेमिलियर हैं, वो ये कहते हैं कि आवाज़ बिल्कुल इन्हीं लोगों की है जिनके बारे में ये कॉन्वर्सेशंस हैं। दूसरी बात, कॉन्वर्सेशंस का जो फ़्लो है, देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको जो फ़्लो है उससे समझ में आ जाती हैं कि ऑथेंटिक है कि नहीं है। जैसे राडिया टेप्स जब बाहर आए थे, तो अगर जो भी जना राडिया टेप्स को सुनता, उसको उस कॉन्वर्सेशन के फ़्लो से, बिल्कुल एक नेचुरल फ़्लो है कॉन्वर्सेशन में, उससे समझ में आ जाता है कि भाई ये फैब्रिकेटेड नहीं है, उसमें कोई ब्रेक नहीं सुनाई देता और फ़्लो बिल्कुल नेचुरल है। उस वजह से लगता है कि ये ऑथेंटिक है। उसके अलावा कोई ऐसी फोरेंसिक जांच हम लोग ने नहीं कराई है, लेकिन हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इनकी बिल्कुल गहरी तहकीकात होनी चाहिए। देखिए, उनके इन टेप्स के सहारे ये तो दिखाई दे रहा है कि कवर अप के बारे में उनको पता था। ये जो पूरा कवर अप बाद में किया गया, इसको छुपाने के लिए ये दिखाने की कोशिश करी गई कि भाई ये पैसा लोन था और ये अब लोन वापस किया जा रहा है, ये सारा बिल्कुल फर्जी था और इसके बारे में उनको पूरी जानकारी थी। स्कैम के बारे में कितनी जानकारी थी या नहीं थी, ये इन टेप से ठीक से, लेकिन उसकी भी जांच होने की ज़रूरत है। Obviously, his involvement in many things needs to be investigated. He is widely known to have been a very close, and from these conversations you can make out that this Sharad Reddy, the managing director of Kalagnar TV, is telling him, and that he seems to be looking after the affairs of the Karunanidhi family, because Sharad Reddy is telling him that, look, now I have received, somebody was tipping off this Sharad Reddy as to when the CBI people are likely to come and arrest these directors. And therefore, he is tipping him off on behalf of the family. So therefore, it's very clear from these conversations that Jafar Saib, though being a very senior police officer of Tamil Nadu and IPS officer, was acting as a kind of manager and fund manager of this Karunanidhi family. And therefore, he is talking about arranging these funds of 100 crores, etc. from some company which will be used to pay off the loans or the so-called loan. So therefore, clearly his involvement needs to be very deeply investigated, and it does appear prima facie from these conversations that he is very deeply involved in at least the cover-up, if not in the scam itself, and must be in managing the money of this family. इसमें
कई सारी नई चीज़ें हैं जो कि इस पूरे खासकर ये जो करुणानिधि के फैमिली का जो इन्वॉल्वमेंट है उस पर काफ़ी लाइट शेड कर रहा है। तो इसलिए उसमें नए नए ऑफेंसेस भी बाहर आ रहे हैं, फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये दूसरी कंपनियों से पैसा लेना, उसका भी इन्वेस्टिगेशन होना होगा। टाटा कंपनियों का जो इन्वॉल्वमेंट है उसका भी इन्वेस्टिगेशन होना होगा। थैंक यू। थैंक